الیکشن جو ہے وہ اس کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے ہر صورت میں الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کو انشور کرائے گی اور ہر صورت میں الیکشن۔ قیاس آرائیاں ختم، شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز کا 2 ٹوک اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ، دونوں صوبوں میں خصوصی سیکیورٹی اقدامات کی ہدایت۔ انتخابات کے دن انٹرنیٹ کی بندش کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ انٹرنیٹ سروس کا معاملہ سامنے آیا تو الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم آف لائن کام کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی وضاحت، بیلٹ پیپر کا سائز چھوٹا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیلٹ پر مہر لگانے کا خانہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ سکندر سلطان راجہ نے تفصیلات بتا دی۔ دور دراز اور حساس علاقوں میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل کے لیے الیکشن کمیشن ان ایکشن مربوط حکمت عملی بنا لی۔ گوادر، پنجگور، خاران، باجوڑ اور کرم ایجنسی میں ہیلی کاپٹر اور C-130 طیارے کے ذریعے بیلٹ پیپرز بھجوائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے پاس بیلٹ پیپرز کا اضافی کاغذ ختم۔ سپریم کورٹ نے مزید کسی حلقے میں دوبارہ بیلٹ پیپرز چھاپنے کا حکم دیا تو متعلقہ حلقے میں انتخاب ملتوی کر دیا جائے گا۔ عام انتخابات سے قبل بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر میں شدت۔ کوئٹہ میں سی پیک روڈ پر دھماکہ، ایک شخص جاں بحق۔ کمرانی روڈ پر نون لیگ کے دفتر کے قریب دستی بم حملہ۔ جعفر آباد میں کریکر حملے کے باعث 4 افراد زخمی۔ تربت میں مولانا عبدالحق چوک کے قریب دھماکے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ مستونگ سینٹرل جیل پر دستی بم حملہ، اہلکار زخمی۔ خیبر پختونخوا کے لوگ سادے 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھر کا نعرہ لگانے والوں کے جھانسے میں آ گئے۔ ایک شخص کے جال میں پھنس کر پرانا پاکستان بھی برباد کر دیا۔ نواز شریف کا بانی PTI پر صوبے کے عوام کے جذبات سے کھیلنے کا الزام۔ کہاں گئے 300 ڈیم، کہاں گئے بلین ٹری سونامی، کسی کو گھر ملا تو بتائیں۔ سوات کے جلسے میں شرکا سے سوال، لواری ٹنل نون لیگ نے بنایا، ووٹ کسی اور کو دے دیے۔ عوام کو اللہ سے معافی مانگنے کا مشورہ، اب کسی کے جھانسے میں نہ آنے کا وعدہ بھی لے دیا۔ ایک سیاستدان کا دعویٰ ہے کہ سال 2013 میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی۔ لوڈ شیڈنگ صرف رائے بند میں ختم ہوئی، باقی ملک میں تو آج بھی اندھیرا ہے۔ پورا پاکستان تخت لاہور کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کی لیگی قیادت پر وار۔ خوددار کے جلسے میں اقتدار میں آ کر بلوچستان کی شکایات کے ازالے کا وعدہ۔ شدت پسندوں کے جھانسے میں نہ آنے کی اپیل۔ مخلوط حکومت بنی تو پیپلز پارٹی، نون لیگ یا PTI میں کسی کا ساتھ نہیں دے گی۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں جیالی چیئرمین نے اپنی بانی PTI کے اہلیہ جیل کے بجائے بنی گالا میں کیوں؟ سہالہ ریسٹ ہاؤس منتقلی کی پیشکش تو انہیں بھی ہوئی لیکن مسترد کر دی۔ سوات کے جلسے میں مریم نواز کی PTI پر یلغار۔ نواز شریف کو چور کہنے والا خود بڑا چور نکلا۔ میاں صاحب عوام کا دکھ دیکھ کر اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر نے عوام سے بھرپور مینڈیٹ کی اپیل کر دی۔ جب شہید بیوی وزیر اعظم تھی تو ہر کیبنٹ کی میٹنگ میں ان کا پہلا ایجنڈا ہمیشہ عوام کی زندگی آسان کرنے تھا۔ میرے بھائی بلاول بھٹو زرداری یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بنے گا اس کا بھی ہمیشہ پہلا ایجنڈا غریب اور مظلوم کی مشکل آسان کرنے ہوگا۔ آصفہ بھٹو نے بلاول بھٹو کا عوام کی آواز قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اقتدار میں آ کر مفت علاج، مفت معیاری تعلیم اور تنخواہیں 2 گنا کرنے کا عزم دہرا دیا۔ جہانگیر ترین کے اقتدار میں آ کر معیشت پر توجہ دینے کا وعدہ۔ معیشت بہتر ہوگی تو سب کو فائدہ ہوگا، آمدن بڑھے گی، معیار زندگی بھی بلند ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ کا لودھرا میں جلسے سے خطاب۔
हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी, जेयूपी के तमाम उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार। मुस्तफा कमाल इश्तियाल अंगेज बयानात से माहौल खराब करना चाहते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर कोई भी मौजूद नहीं। शर्जील इनाम मेमन की साहबजादा जुबैर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, नवाज शरीफ एमएनए तो हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट नहीं हो सकता। नवाज शरीफ एमएनए तो बन सकते हैं, वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं होंगे। ख्वाबों के सौदागर मंजूर वसान की नई पेशगोई। जियाले रहनुमा ने आजाद उम्मीदवारों का झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ होता देख लिया। सखर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नासिर हुसैन शाह की आमद पर हवाई फायरिंग। कश्मीर में जियाली उम्मीदवार अली जान मजारी की इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के रोज मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर की आम तातील। तलबा मजमूई तौर पर 9 छुट्टियों के मजे उड़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए मोबाइल ऐप तैयार। सीपीओ, डीपीओ और आरपीओ ऑफिस में मॉनिटरिंग होगी। सूबे भर की मैपिंग मुकम्मल। इमरजेंसी अलर्ट, सेहत सहूलियात, ऑडियो और वीडियो कॉल का फीचर ऐप में शामिल। सूबे के 137 हाई स्पॉट्स पर पुलिस एहलकार बॉडी कैम्स इस्तेमाल करेंगे। बाजोड़ में फायरिंग से जामहक होने वाले आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत इजलास में उम्मीदवारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दामात का जायजा। बाजौर स्काउट्स बिल्डिंग पर पथराव में मुलव्विस मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज। रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद मुश्तल अफराद ने बिल्डिंग पर पथराव किया था। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तानी अवाम को यह हक हासिल है कि वो बिला खौफ व खतर लीडर का इंतखाब करें। तर्जुमान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। PTI की रैली पर हमले की मजम्मत। साबिक़ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अहद तोड़ा, जानबूझकर झूठ बोला, खुद साख्ता परेशानियां बताईं, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। मुल्ज़िमान ताख़ीर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेलते रहे। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने 77 सफ़ात पर मुश्तमिल साइबर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इक़दाम से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। दोनों मुजरिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तफसीली फैसले में जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रिमार्क्स। साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंस के तफसीली फैसले के हुसूल के लिए बानी PTI की दरखास्त। केसेस में ट्रायल कानूनी तकाज़ों के खिलाफ चलाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में बानी PTI का मौक़िफ़। दूसरों को सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर मर्द मोमिन कहलाए। इनको सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर पर तनकीद शुरू कर दी। फैसले में झोल हैं तो अदालतें मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक का बानी PTI की सजाओं पर रद्द अमल। दौरान इद्दत निकाह केस की अडियाला जेल में समाप्त। गवाहान के बयानात कलमबंद। वकला सफाई आज भी गैर हाजिर। बुशरा बीबी को सब जेल से अदालत में पेश किया गया। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक़ वज़ीर आला परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर का आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म के लिए दोबारा पेश करने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी नाराज। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 272 रुपये 89 पैसे लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे इजाफा। नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे हो गई। नए साल का पहला माह अवाम पर भारी रहा। महंगाई की शरह 1.83% बढ़कर 28.34% तक पहुंच गई। पंजाब में नमूनिया ने मजीद 8 बच्चों की जिंदगियां निगल ली। मरने वालों की तादाद 296 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान 792 नए केसेस रिपोर्ट।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का दौरा मुल्तान, 5 साल से ज़ेर इल्तवा नश्तर अस्पताल 2 और सब सिटी अस्पताल में नए शोबे का इफ्तिताह। 919 केनाल अराजी पर मुहित कैडेट कॉलेज का संगे बुनियाद भी रखा। मौसम नक़्वे मुद्दत खत्म होने के बाद सियासत में अदम दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी निभाने को तैयार। कराची के इलाके सोराब गोट में डाकू और शहरी आमने सामने। 4 मुसल्लह अफराद ने लूटमार में मज़ाहमत पर फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल कर दिया, 2 को जख्मी कर दिया। फरार होते मुल्ज़मान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शदीद तशद्दुद से 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। ईरान के शहर सरावान में क़त्ल 9 पाकिस्तानी मजदूरों की मैयतें मुल्तान पहुंचाए जाने के बाद निश्तर अस्पताल मुंतकिल। 2 को शनाख्त के बाद वरसा के हवाले कर दिया। मकतूल मेहनत कशों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ और लोधरा से था। पाकिस्तानी शहरियों के टारगेट किलिंग में रॉ के मुलव्वस होने के सबूत भारत और सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल मुल्क के हवाले। उन ममालिक से भी राबते हैं जहां से भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराता रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग वाज़ेह किया, पाकिस्तान को जिन दहशत गर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे बैठे हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब होने के बाद अमरीका और भारत के ताल्लुकात में तलखी बरकरार। बाइडन इंतजामिया ने मोदी सरकार को $3 अरब के ड्रोन की फरोख्त रोक दी। मोदी सरकार की मुसलमानों से नफरत इंतहा को पहुंच गई। नई दिल्ली में 700 साल कदीम तारीखी मस्जिद शहीद कर दी। कुरानी नुस्खे भी निकालने की इजाज़त नहीं दी। नोटिस दिए बगैर मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना दे रखा था। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। देर अल बलाह में रफाही बिल्डिंग पर बम दाग दिए गए। हमास ने इसराइली फौज पर हमले की। कराची में 3 और 4 फरवरी को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जुमे की शब को बूंदाबांदी भी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक नई मगरबी लहर आज से बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। जाम शोरो, दादू, लाड़काना और दीगर इलाकों में भी बारिश की तवक्को। सिंध प्रीमियर लीग में बूम बूम आफरीदी की धुआंधार निस्फ सेंचुरी। बेनजीर बाबलाज को फतह ना दिलाई जा सकी। मीरपुर खास टाइगर्स ने 157 रन का हदफ 12वें ओवर में पूरा कर लिया। कौमी टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक 42 बरस के हो गए। सालगिरह के दिन भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से अलहदगी और सना जावेद से दूसरी शादी सोशल मीडिया का मौजू बन गया। राइजिंग पंजाब गेम्स के टेबल टेनिस इवेंट्स लाहौर के खिलाड़ियों के नाम। बॉयज इवेंट में फैसलाबाद को 0-3 से शिकस्त। गर्ल्स इवेंट में परनिया खान ने सबा मुश्ताक और कुलसूम ने फैसलाबाद की आयशा को मात दे दी। डिजिटल मीडिया के दौर में भी किताबों की अहमियत से इनकार नामुमकिन। लाहौर के इंटरनेशनल बुक फेयर में तमाम शोबों की किताबें एक ही छत तले मुयस्सर आ गईं। 5 रोज़ा मेले में दर्जनों स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। ये बुक फेयर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, एक तो रीडिंग हैबिट में और एक रीडिंग क्यूरियोसिटी पैदा करने में। हमारा जो नौजवान तबका है आजकल वो किताबों के साथ बिल्कुल मुंसलिक नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया के साथ ही है। और उनको वापस किताबों तक लाने के लिए हमें इस तरह की एग्जीबिशंस लगानी चाहिए। पेशावर यूनिवर्सिटी में अमन मेला, तलबा का मौसीकी पर रक्स, लजीजा खानों का चटकारा। गैर निसाबी सरगर्मी का मौका मिलने पर तलबा तालिबा तरोताजा हो गए। कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें जो है हमारे पास हर किस्म के लोग आ रहे हैं। तो जब ये इवेंट्स होते तो इससे मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह के फेयर्स वगैरह होने चाहिए और डिफरेंट बच्चों ने मतलब डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगाए गए।